this is the year of harvest. और ये कटनी का साल है. We are not going to do a sowing ceremony, but we are going to do a reaping ceremony. हम इस साल बोएंगे नहीं, लेकिन हम लोग इस साल काटेंगे. Whatever we have sown in the year 2025, we are going to reap in 2026. 2025 में हमने जो भी बोया है उसकी हम कटनी 26 में काटने वाले हैं. So, do you want to get into a sowing part or you want to get in the reaping part? क्या आप बोने के जगह में रहना चाहते हो या काटने वाली जगह में रहना चाहते What do you हो? want to do? How many wants reaping? कितने लोग कटनी काटना चाहते हैं? Some of you don't want to do a harvest here. Come on. I want you to get encouraged. Harvest is something beautiful. मैं आप चाहता हूँ कि आप लोग उत्साहित हो जाए, क्योंकि कटनी एक बहुत ही सुंदर बात है. And God talks about saving souls. और परमेश्वर आत्माओं को बचाने के विषय में बात करता He है. said, I know we all think about material things. वो कहता है कि मैं नहीं, I know. मैं I जानता know that we हूँ all कि think सब about लोग- material things. सब लोग कटनी की बात आते ही खाली दुनिया की चीजों के बारे में सोचते हैं. And it's good that we should think about harvest in our worldly things. और ये अच्छा है कि हम अपने सांसारिक जीवन में भी कटनी के विषय में हम सोचें. We need wealth, we need money, we need cars, we need a good lifestyle to live in this world. हमें धन की आवश्यकता है, हमें अच्छे घर की अच्छी जीवन शैली की आवश्यकता है इस दुनिया में जीने But के लिए. God says something opposite to that. लेकिन परमेश्वर उसके विपरीत बात He करता है. says, seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. परमेश्वर कहता है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. So when we think about harvest, I know you will think about the material thing, but I want you to think about the soul saving. मैं जानता हूँ कि जब आप कटनी के विषय में सोचोगे तो आप दुनियादारी चीज़ों के बारे में सोचोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग आत्माओं के विषय में सोचो. I heard somebody was asking someone, hey, where should I invest this year 2026? मैंने किसी से पूछते हुए सुना कि इस साल में मैं 2026 में मैं कहाँ निवेश करूं. Some says invest into a properties. You get a lot of calls from Dubai and people are investing into Dubai. How many of you get calls from Dubai? कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश करो, और बहुत सारे लोग दुबई से उनके फ़ोन आते रहते हैं कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करने I don't know about you, but I get calls from Dubai. Hey Andrew, do you want to invest into Dubai? Because we will give you a free visa if you invest about 3 million. आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे कॉल आते हैं कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में निवेश करते हो तो हम आपको फ्री वीज़ा देंगे. So like that, there are people in the world, they are inviting you. If you have money, you can invest and the property is increasing. Dubai is doing very well. तो ऐसे ही दुनिया में लोग आपको बुला रहे हैं वहाँ पर निवेश करने के लिए, और दुबई एक बहुत अच्छी जगह है प्रॉपर्टी में निवेश करने. People are investing into what is that called, Lian? Which we always invest? Mutual funds. लोग म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश कर रहे हैं. People invest into fixed deposits. फिक्स डिपॉजिट में धन. People invest into gold. They say gold, if you invest, there is a lot of what do you call? Yeah, there is another word for that. Returns. Thank you. Who said सोने it? में निवेश कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है सोने में निवेश So करने like this, से. there will be a lot of ideas if you find to increase your wealth. ऐसे अगर आपको धन बढ़ाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारी युक्तियां हैं. But somebody said, I want to invest into the souls. लेकिन किसी ने कहा कि मैं आत्माओं को बचाने में निवेश करूंगा. I want to encourage you, invest your money into souls, saving souls. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप लोग अपना पैसा जो है आत्माओं को बचाने में निवेश करो. So this year, if you have invested, invest into souls so that we'll have a great harvest at the end of the year. और इस साल आप आत्माओं को बचाने में निवेश करो, ताकि इस साल के अंत में हम अच्छी कटनी काट सके. Somebody will say, how can I invest into souls? कोई सोचेगा, आप में से कोई सोचते होंगे कि हम कैसे आत्माओं को बचाने में निवेश कर सकते If हैं. you have a burden of somebody to save a soul, a friend, take that person on a coffee. अगर आपको किसी को बचाने के विषय में बोझ है तो उस व्यक्ति को आप अपने साथ कॉफी पे लेके जाओ. Make it what do you call that?
make it a plan that you are taking somebody on a coffee to give them the gospel, your testimony, how God has saved you. योजना बनाओ कि ये सोच कर कि मैं उस व्यक्ति को वहाँ पे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ पे अपनी गवाही उसके साथ बांट सकूँ। That is one way of investing into souls. ये भी एक तरीका है आत्माओं को बचाने के लिए निवेश करने का। Do you believe in me? I have done it many times and I keep doing it. मैंने बहुत बार ऐसा किया है और मैं ऐसा बीच बीच में करता रहता हूँ। So this year, इस साल first Sunday, इस साल के पहले रविवार को we always think about what I should be preaching, and we always think that the sermon should be like making new resolutions. और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं पहले रविवार को क्या प्रचार करूँ, और हम सब लोग सोचते हैं कि नए निर्णय, नई प्रतिज्ञाएं लेने के विषय में प्रचार होगा। And this year, इस साल I would encourage you to start a new beginning as a good resolution in your life. मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि एक अच्छी प्रतिज्ञा के साथ आप लोग इस साल की शुरुआत करें। A new beginning in your life. एक नई शुरुआत आपके जीवन में। Let us start our year with a new beginning, meaning something new in our life. हम इस साल हम एक अपने जीवन में एक नई बात के साथ, एक नयापन के साथ शुरुआत करेंगे। I like somebody's quote. किसी ने कहा है, You don't have to be great to start, आपको बहुत बड़ा होने के लिए जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, but you have to start to be great. लेकिन बड़ा बनने के लिए आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी I पड़ेगी। don't know how many of you understood this phrase or a quote. ये कहावत कितने लोगों को समझ में आई मैं नहीं जानता। Many times we think that if I want to become great in life, I have to be born in a great family or in a rich family. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि बड़ा बनने के लिए, हमारे जीवन में बड़ा होने के लिए हमें बड़े बड़े परिवारों में जन्म लेना जरूरी है। Oh, I wish I had this much money, then only I could become great. तो और हम सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति होता। But this is a very reality quote. It says you don't have to be great to start in your life a new beginning. लेकिन ये कहावत वास्तविकता पर आधारित है कि आपको बड़ा बनने के लिए बड़ा रहना जरूरी नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। कुछ नई शुरुआत करने के लिए आपको पहले से बड़ा रहना जरूरी बड़ा नहीं है। होना जरूरी नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको छोटे से ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा। You will have to start from the small. छोटे से आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत। और मेरे पास इतने सारे गवाहियां हैं आपके सामने लाने के लिए, आप लोग ताजुब हो जाएंगे कि ये क्या है, इतने से लोग बड़े बड़े बन गया जो छोटे से शुरुआत किया उन लोगों ने। और वचन कहता है, The word of God says, Job 8:7, your beginning will seem humble, so prosperous will be your future be. जितनी छोटी आपकी शुरुआत होगी उतना ही अच्छा आपका भविष्य होगा। In other words, humble होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अब नम्रता आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। If you are having a proud heart, a pride heart, then don't expect God want to raise you up, because if you want to be on a level of God's level, then God is saying be humble wherever you are. अगर आपका मन घमंडी है तो आप ये अपेक्षा मत करो कि परमेश्वर आपको उठाएंगे। तो अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको उठाए तो आपको नम्र बनना पड़ेगा। This word has really helped me in my life. और इस वचन ने मेरे जीवन में मुझे सहायता किया है। So let us start a beginning with a humble heart or humble attitude, humble nature. तो हम हमारी नए साल की शुरुआत एक नम्रता पूर्वक करेंगे। So prosperous will be your future. तो उतना ही उज्जवल आपका भविष्य होगा। So if you want to become a prosperous, or if you want to become a rich man or rich woman, or you want to be something up on anything, whether it is a ministry, whether it is a wealthy or businesswoman, businessman, you need to immediately remind yourself, Job 8:7, be humble.
अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर ऊंचाई पर जाना चाहते हो तो आपको अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि आपको नम्र होना है, Because this is the word of God, and word of God is reminding all of us today in this year 2026, if you want to have a great harvest in your life, if you want to have a great harvest, then you need to start a new beginning, and the new beginning is being humble. और ये परमेश्वर का वचन है कि अगर आपको इस साल अच्छी कटनी काटनी है तो आपको एक नई शुरुआत करनी है, और नई शुरुआत आपको नम्र होकर करनी है। Amen. 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 There's one more word coming for you. Joshua 1:9. यहोशू 1:9। God is encouraging us this word. He's telling each one of us, doesn't matter how low you are, how weak you are, how simple you are, that you don't have anything. God is encouraging right now to all of us, and you will be encouraged by this word. और परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहता है कि आप कितने भी छोटे और कितने भी निर्बल क्यों ना हो, लेकिन आप इस समय इस वचन के द्वारा उत्साहित हो जाओगे। He says, have I not commanded you, be strong and courageous, do not be frightened, even if you don't have anything in life. God is saying, trust in me, I want to raise you up, even if you are on zero. परमेश्वर कहता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं आपको ऊंचा उठाना चाहता God हूँ। is saying, even if you are weak, I want to make you strong. परमेश्वर कहता है कि अगर आप निर्बल भी हो तभी भी मैं आपको बलवान बनाना चाहता He's हूँ। saying, don't fear your situation, I will encourage you, I will make you courageous. वो कहता है कि आप अपने परिस्थिति से घबराओ मत, मैं आपको साहस दूंगा। Do not be frightened. If you have a fear, the Bible says fear comes from the devil. God is telling all of us, no matter whatever you are going through, whether you may be feeling in your heart that you will be thrown out from your job or something like that, God is saying, trust in me, I want to make you prosperous. अब परमेश्वर कहता है कि भय ना खा, आप जिस किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको संपन्न करना चाहता For the हूँ। Lord your God is with you wherever you go. क्योंकि जहाँ Come on, I need a big amen for this. वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। I'm telling you, my dear friends, all of us have difficulties. All of us has a storm in life. All of us go through a time where there is a chaos, but God is saying, trust in this word. I will give you a new beginning in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर किसी का जीवन में ऐसे संघर्ष आते हैं, गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं आपको नई शुरुआत करके दूंगा। God is interested in us to make us wealthy people. परमेश्वर हमें संपन्न बनाने में दिलचस्पी He रखता wants है। us to become us rich. He doesn't want to keep us poor or pauper. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हमेशा गरीब बने रहें। Rich. वही ना, क्या गरीब बोला आपने? गरीब बना के रखना नहीं चाहता। He wants to make us wealthy. वो हमें धनवान बनाना चाहता मगर है। the key point is to become humble. लेकिन जो सबसे जरूरी बात वो है कि हमें नम्र बनना है। The key point is that you should not have a pride in you. हमारे अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए। Key point is that if you are talented, then also you should not have pride in you. It is because of my talent I am doing it. अगर आपके अंदर प्रतिभा है तभी भी आपका अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए कि मैं मेरी प्रतिभा से कर रहा So हूँ। if you are interested to become a wealthy person or prosperous and having a great year 2026, then you need to come to the word of God and make yourself right there to become humble. अगर आप ये साल अच्छा चाहते हैं, अगर आप संपन्नता चाहते हैं, अच्छी तरीके से इस साल को बिताना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन को देखते हुए अपने आप को नम्र करना होगा। I will give you few examples from the Bible how God raised them up when they were humble and they had nothing in them. कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि कैसे नम्र लोगों को परमेश्वर ने उठाया। Something new happened in this young boy who was a shepherd who had nothing. He had only sheep to take care. अब कुछ नया हुआ इस लड़के के जीवन में जिसके पास अपने भेड़ बकरियों को चराने के सिवा और कुछ भी नहीं था। He was not even counted by his own father that he would do something great. वो किसी के भी हिसाब में उसके माता पिता भी नहीं सोचते थे कि वो कुछ बड़ा काम करेगा। When the prophet came to bless one of the son of his father, what's his father's name? Jesse. Jesse didn't even know that his youngest son would become
a king of Israel. जब शमूएल उनके राजा को चुनने के लिए आया वहां पे, तो यिशै ने यह सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे छोटा बेटा राजा बनेगा। And God used him with a sling to kill Goliath, and he became so famous that he was made the king of Israel. और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया है गोफन से गोलियत को मारने के लिए, और वो इजराइल का राजा बन गया, Only because he was humble enough. सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नम्र था। He took food for his brothers on a battlefield without hesitating. और जंग के मैदान में अपने भाइयों के लिए वो खाना लेके गया था बिना हिचकिचाए। He didn't have a pride in his hand. How many of you want to become something very famous in life? Then the key point is being humble. कितने लोग कुछ एक नामी व्यक्ति बनना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे जरूरी बात है कि आपको नम्र बनना होगा। The pride comes from the devil. घमंड जो है शैतान की ओर से You आता need है। to drive away the devil and say, get out. Devil doesn't want you to be rich or prosperous in life. आपको इस शैतान की ओर से आने वाली बात को आपको अपने जीवन से निकालना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उन्नति करो। Without our knowledge, the pride comes in. हमारे जाने बगैर ही हमारे अंदर घमंड आता है। The pride will take away from us from God. और ये घमंड हमें परमेश्वर से दूर लेके जाएगा। The Bible says in the book of James, God hates those who are proud and pride. याकूब का में लिखा Come on, है I need कि an amen here. परमेश्वर घमंडी लोगों का सामना करता है, वो उनसे घृणा करता God है। wants to raise you today. परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है। God wants to make you prosperous today. परमेश्वर आज आपको धनवान बनाना चाहता God है। wants to make you a giver and not a receiver today. परमेश्वर आपको देने वाला बनाना God wants to चाहता make है। you a head and not a tail. परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता But है। the key point is, are you ready to become humble? लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप नम्र होने के लिए तैयार हो। We know about the story about Joseph. हम यूसुफ की कहानी के बारे में He जानते had हैं। nothing. He was thrown out to be killed by his brothers. उसके पास कुछ भी नहीं था और उसके भाई उसको मार डालना चाहते थे। But God raised him up. Is your situation like Joseph? Trust in the Lord and God will raise you up in your life. परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, और अगर आपकी भी परिस्थिति यूसुफ के जैसी है तो आप परमेश्वर में विश्वास Are करो, you आपको ready for the उठाएगा। new life in your first beginning in 2026? Then the key role is be humble. क्या आप लोग तैयार हो एक नए जीवन के लिए 2026 में? तो सबसे जरूरी बात है कि नम्र बनो, Because the pride God doesn't like. क्योंकि घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। You may think that you are getting prosperous, but there is down the line, there will be something which will go wrong in your life if you have pride in your life. आपको ऐसा लगता होगा कि मैं धनवान बनता जा रहा हूँ, लेकिन एक ना एक दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर There will be होगी। a hollow in your life अगर when you आपको don't have घमंड God. है, वो एक खाली जगह वहाँ पे जरूर होगी जब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। Amen. Amen. Are you excited to know more examples? क्या आप और उदाहरण जानना चाहते हैं बाइबल से? No, I didn't say Bible say. Do you want more examples? क्या आपको और उदाहरण चाहिए? Now, there are so many examples in the world as well. दुनिया में भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। Amen. And God made them wealthy because they were humble enough. और परमेश्वर ने उनको धनवान बनाया क्योंकि वो नम्र थे। They did not look what they had. They went on what little they had. उनके पास क्या है उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जो थोड़ा सा था उससे ही वे आगे बढ़ते चले गए। Before giving some more example, I would like to share little about myself to you. अब और बाहर के उदाहरण देने से पहला मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। When I lost my daddy at the age of 18, जब मैंने मेरे पिताजी को 18 साल की उम्र में खो दिया, when I was 18, जब मैं 18 साल का था, I had only 10,000 in daddy's account. अब मेरे पिताजी के अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे, And that 10,000, God multiplied it, and because I believe, I'm not boasting, there was something that God liked in my life. और वो 10,000 को परमेश्वर ने बढ़ाया, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि शायद कुछ ना कुछ जरूर प्रभु को मेरे जीवन में पसंद आया। I met my God at the age of 18 in Mumbai. मैं परमेश्वर की से मेरी मुलाकात हुई 18 साल की उम्र में मुंबई में। And I started reading the Bible desperately.
और मैंने बाइबल को पढ़ना शुरुआत किया। I started going for a prayer meeting, getting up in the morning at 5 o'clock and going and walking without, there was no transport in the morning. We used to walk from Granto to Baikala where I used to go for prayer meeting. तो हम लोग सुबह सुबह उठ के सुबह के टाइम जाने के लिए कोई भी वाहन नहीं रहता था, हम चल के प्रार्थना सभा में जाते थे। 6 o'clock I had to touch there and we used to pray in Seva Niketan building in Baikala. और 6 बजे हमें वहाँ पहुँचना होता था और वहाँ सेवा निकेतन करके एक बिल्डिंग थी, उसमें हमारी सभा होती थी। I fell in love with Jesus. मैं प्रभु यीशु के प्रेम में पड़ गया। I saw that Jesus is the only source in my life to become a prosperous Christian believer called prosperity. तो मैंने देखा कि यीशु मसीह ही वो एक रास्ता है जिसके द्वारा मैं एक धनवान और संपन्न व्यक्ति हो सकता हूँ। I saw that there was a need in my family, my mother, 2 sisters who are younger to me. I had a responsibility to take care of them as a father, as a brother, and son. तो मैंने देखा कि हमारे परिवार में ज़रूरत थी, मेरे माँ को और मेरी 2 बहनें थी और मुझे उनका ख्याल रखना था। My mother did not decide to get married because she was content of God's security through me. तो मेरे माँ ने फिर से शादी करने का फैसला नहीं लिया क्योंकि परमेश्वर जो कार्य मेरे द्वारा उनके जीवन में कर रहा था उससे वो संतुष्ट थी। She felt that why should I get married? She was very young. She could have decided to get married, but she didn't. But she trusted in Jesus. She knew that Jesus will help us to come up in life. वो बहुत जवान थी, वो चाहे तो फिर से शादी करने का फैसला ले सकती थी, लेकिन उन्होंने वो फैसला नहीं लिया। उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वो हमें उठाएंगे। And God really blessed us, and we are a blessed family right now. और परमेश्वर ने सचमुच हमें आशीषित किया और आज हम लोग एक आशीषित परिवार It हैं। is because we started from a small beginning, little beginning. वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने छोटे से शुरुआत की। Amen. Amen. I want to tell you that in the book of 2 Corinthians it says, can we open up 2 Corinthians 4:10, 4:18? दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय और 18 वचन। So we fix our eyes not what is seen, but on what is unseen. Since what is unseen is temporary, what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। I want to encourage you this morning, don't look at what you see, but look at what you do not see, and what you do not see is trusting in God. मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपके आंखों के सामने जो दिख रहा है उसकी तरफ आप मत देखो, लेकिन जो अनदेखा है उसकी तरफ देखो और उसके लिए आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। And see then how God is going to raise you up in your life. और फिर आप देखो कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको कैसे उठाता है। Amen. Amen. It says in the book of Luke 16:10, लूका 16 अध्याय और 10 वचन में लिखा है, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। And whoever is dishonest with very little will be also dishonest with much. जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। I love the scripture. मुझे बहुत अच्छा लगता है। And I keep quoting the scripture to many people in the church. मैं कलीसिया में बहुत सारे लोगों से इस वचन के द्वारा बात करता हूँ। And many people get hurt by when I quote the scripture. और बहुत लोगों को बुरा लगता है जब मैं इस वचन से But बात this is करता हूँ। true. लेकिन यह सत्य है। Start having gratitude on what you have. थोड़ा सा जो आपके पास है उसके प्रति आप धन्यवादी हो जाओ। When we started a church with my family alone, जब हमने सिर्फ मेरे परिवार को लेके इस कलीसिया की शुरुआत की थी, we appreciated what gave us a little. परमेश्वर ने जो थोड़ा सा हमें दिया था उसकी हमने सराहना की। Then God brought us at this level.
अब परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आया, फिर We appreciated what God gave us this little. और जो भी थोड़ा यहाँ तक जो दिया है उसको भी हम सराहते हैं परमेश्वर को। Now God is taking us to the next level. अभी परमेश्वर हमें आगे लेके जा रहा है। God is saying, if you appreciate that, I'm going to take you to the next level as और well. परमेश्वर कहता है कि अगर आप उसकी सराहना करोगे तो और बड़े स्तर पर मैं लेके For जाऊंगा। 5 years we are praying to God. 5 सालों से हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे God हैं। give us a 1,000-seated auditorium. परमेश्वर आप हमें 1000 लोगों के बैठने की जगह दो। We are having struggled to make this auditorium filled. हमारे यही जगह भरने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। But God is saying, if you are faithful with this, I will give you that. परमेश्वर कहता है कि तुम इस जगह में अगर विश्वास योग्य रहता हो तो मैं तुम्हें बड़ी जगह दूंगा। If I get discouraged by these chairs are being empty, why these chairs are empty? If I get discouraged, if I look at that, I'm not going to achieve that. अगर मैं यहाँ पर खाली कुर्सियों को देख के अगर निराश होता हूँ तो मैं उस जगह को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। Devil is showing me the chair is empty here. अब शैतान मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पर कुर्सी खाली है। Devil is showing me the chairs are empty there. अब शैतान मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारी कुर्सियां बीच But में खाली I है। see it unseen. I see the entire place is filled. लेकिन जब मैं अनदेखी वस्तुओं पर आंख लगाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पूरी जगह भरी I हुई can है। see somebody sitting here. मैं देख रहा हूँ कि कोई तो यहाँ पर I बैठा can है। see people sitting there. मैं देख सकता हूँ कि लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। I'm trusting in God what is unseen rather than trusting in God what is seen. मैं देखी हुई वस्तुओं पर भरोसा रखने से अच्छा मैं परमेश्वर पर अनदेखी वस्तुओं के लिए भरोसा Likewise, God is going to do something great in your life. रखता हूँ। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा काम करेगा। As you are a believer of Christ, as you're coming to this tent church, you should have the same vision what the pastor has a vision. जबकि आप एक विश्वासी हो और इस कलीसिया को आ रहे हो तो आपके पासवान के जैसे ही वही दर्शन। If you say that I'm coming only for Christmas and New Year and Good Friday, that's my calling, I'm only attending these 3 services, then you are wrong. अगर आप कहते हो कि मैं सिर्फ क्रिसमस, गुड फ्राइडे और न्यू ईयर को ही आता हूँ तो आप गलत हो। If you're thinking that you're coming only few Sundays of the year, then you are wrong. अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ कुछ ही रविवारों को आता हूँ तो आप गलत हो। You need to have a vision where the church where you go. आप जिस कलीसिया को जाते हो उसके लिए आपके पास एक दर्शन होना जरूरी If है। you don't have a vision for godly things, God is not going to prosper you in a worldly things. अगर आप परमेश्वर की बातों के लिए अगर दर्शन आपके पास नहीं है तो दुनिया की बातों में प्रभु आपको नहीं बढ़ाएगा। You need to change your thinking. You need to make your thinking differently, godly way. आपको अपनी सोच बदलनी जरूरी है। आपको परमेश्वर की सोच में आना जरूरी God है। wants to raise you up in your life. परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। Start seeing what you cannot see. आप वो देखना, आप अनदेखी वस्तुओं को देखना शुरुआत Be करो। faithful what you have. जो आपके पास है उसमें आप विश्वास योग्य रहो। God is going to give us 1,000 sitting. How many of you want to have a godly vision in your life? परमेश्वर हमें 1000 लोगों के बैठने की जगह जरूर देगा। किस Whether it's a tent church or whether it is any other church, we need to have a vision for everybody saving souls. या टेंट की कलीसिया होने दो या कोई भी कलीसिया होने दो, हमें हर कलीसिया के लिए आत्मा You need to think differently. You need to think godly. You need to think how God thinks in your life. आपको परमेश्वर की तरह सोचना जरूरी है। Seek first the kingdom of God and all the things will be added unto you. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सब वस्तुएं मिल Look जाएंगी। at God's vision, not your vision. आप परमेश्वर के दर्शन को देखो, अपने दर्शन को So नहीं। be faithful in what you have little. God is going to take you up to the next level. जो आपके पास थोड़ा सा है उसमें आप विश्वास योग्य रहो तो परमेश्वर आपको If you are able to play 3 chords, play 3 chords and glorify God in your life. अगर आप सिर्फ 3 कॉर्ड बजा सकते हो तो सिर्फ 3 ही कॉर्ड बजा के परमेश्वर की महिमा I करो। can play 3 chords and do a worship of 4 songs if nobody is available in the musicians are available. अगर कोई भी यहाँ पर संगीत बजाने वाले नहीं भी रहेंगे तो मैं 3 कॉर्ड बजा के भी परमेश्वर की आराधना कर सकता And हूँ। I believe God is present in that worship. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर वहाँ पे उपस्थित है। If you are ready to take care of the coffee machine, come on, come forward and say, I want to do a coffee machine. I want to take care of the coffee machine for 3 months now. अगर आप कॉफी मशीन का ख्याल रखने के लिए आप तैयार हो तो आप आगे आके बोलो कि मैं करने के लिए तैयार हूँ। Are you ready to do
a little thing, God is going to give you the big thing in your life. अगर आप छोटा काम करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपको बड़ा If you बनाएगा। are appointed to take care of the camera, do it faithfully. Do not simply sit there and do nothing, moving the camera. अगर कैमरा का ख्याल रखने के लिए अगर आपको नियुक्त किया गया है तो विश्वास योग्यता के साथ अपना काम करो। If you are called at 8:30, see that you come at 8:30. Be faithful with what you have little. अगर आप 8:30 बजे आपको बुलाया गया है तो आप 8:30 बजे आओ, थोड़े में आप विश्वास If योग्य you are रहो। put in a core team, see that you do it faithfully, because God is going to raise you up. अगर आपको कोर टीम में डाला गया है तो वहां पे आप विश्वास योग्यता के साथ काम करो, क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएगा। God wants to raise you up in your life. परमेश्वर आपको आपके God जीवन wants में to उठाना prosper you. चाहता है। वो आपको God wants to संपन्न करना prosper you. चाहता है। God wants to prosper you. परमेश्वर आपको Be संपन्न faithful in करना what you चाहता है। have. आप विश्वास योग्य रहो। Amen. Amen. Hallelujah. Isaiah 42, 19, 18 and 19 says, यशाया की पुस्तक 42 अध्याय और 18 और 19 वचन में लिखा है, Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing in your life. परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पुरानी बातों को स्मरण मत करो, मैं तुम्हारे जीवन में नया काम करूंगा। Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. और मैं अरण्य में एक मार्ग बनाऊंगा और रेगिस्तान में नदियां बहाऊंगा। When you take small things considered, that don't, those are the person who had 3 talents. The 3 talent story. The one who had 1, he buried it in the ground. तो क्या तोड़ों के दृष्टांत को आप जानते हो कि जिसके पास एक तोड़ा था उसने मिट्टी में छुपा दिया। The reason why he actually buried it, I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्यों उसने उस तोड़े को छुपाया। There was the reason what he gave was right, that he was looking at the boss, that the boss is a stingy man. कारण उसने बताया कि जो उनका स्वामी था वो बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। But there was one more reason which is hidden, which God gives us a revelation, that he was thinking himself, बाकी लोगों को 3 और 5 दिया और मेरे को 1 ही दिया, what can I do with that? और एक कारण ये था कि मुझे बहुत कम मिला है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए उसने छुपा के रखा। Some of you are thinking like that. मुझे तो पास्टर ने मेरे को वो झाड़ू मारने का काम दिया, मेरे को तो स्टेज पे होना चाहिए था। कुछ लोग ऐसा ही सोचते हैं कि पासवान ने मुझे बहुत छोटा काम दिया है, मुझे स्टेज पे होना चाहिए था। मुझे आगे वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए था। Some wants all the time mic to be hold in their hand. कुछ लोग चाहते हैं कि हमेशा माइक उनके हाथ में रहे। I'm telling you, be faithful with little. God is going to raise you up with big things. थोड़े में आप विश्वास योग्य रहो तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं गवाही दूंगा तो माइक लेके गवाही दूंगा, मुझे बिना माइक का गवाही पसंद नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं माइक लेके ही गवाही दूंगा, बिना माइक के मैं गवाही नहीं देना And they get hurt in the church. और उनको बुरा लग जाता है इन बातों से। कुछ लोगों को हाईलाइट चाहिए गवाहियों पे। कुछ लोग चाहते हैं कि अपना मतलब ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। But God is saying, be faithful with what you have. परमेश्वर कहता है कि जो है उसके I want to raise you up. मैं आपको उठाना I want to raise you up. मैं आपको Amen. उठाना चाहता हूँ। Okay. Do you know a lady called Oprah Winfrey? एक औरत थी जिसका नाम था ओफ्रा विनफ्रे। Born in poverty in rural Mississippi, this in America. मिसिसिपी करके एक जगह है, वहाँ पे वो बहुत ही गरीबी में पैदा हुई। To an unmarried teenage mother, Mississippi, to an unmarried teenage mother, okay? और वो उनके माँ का शादी से पहले ही वो बच्ची पैदा हुई थी। Winfrey had a very difficult childhood marked by abuse. और उसका बचपन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरा। She found her voice in media. और वो जब मीडिया में जब उसने अपने आवाज उठाई, landed a job in radio in high school, हाई स्कूल में उसको एक रेडियो में जॉब मिला, and eventually launched her own production company, और फिर उसने धीरे धीरे अपनी एक कंपनी खड़ी की, building a global media empire and becoming one of the
wealthiest self-made woman in the और world. दुनिया भर में एक मीडिया का बहुत बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा किया और बहुत ही धनवान औरत के रूप में वो उभर के आई। Anybody's life has been that low, I want to encourage you, God can raise you up. अगर किसी का जीवन इतना निचले स्तर पर है तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको If this lady could make up her own company and now she is one of the wealthiest women, self-made woman, then why not you? अगर ये महिला एक अपनी कंपनी शुरुआत करके अपने दम पर इतना धनवान हो सकती है तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? The main key is be humble. और सबसे जरूरी बात है कि आपको नम्र होना है। Admire what God has given you with little. जो आपको परमेश्वर ने दिया है उसकी प्रशंसा करो। If you have a voice to sing, अगर आपके पास गाने के लिए अच्छा गला है, sing for God. अब परमेश्वर के लिए गाओ। Today we had a Navalim group for singing. आज हमारे बीच में यहाँ पर नावेलिम का ग्रुप था आराधना But करने के sad लिए। story, there are so many people in Navalim group, but they are not contributing to come for practice and sing for God. लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो लोग कोई भी प्रैक्टिस में नहीं आते हैं और परमेश्वर के लिए गाने के लिए Some वो are busy अपना with the work on योगदान Sunday. देना नहीं चाहते हैं Some are क्योंकि busy with their work on Sunday, कुछ लोग रविवार को भी काम में व्यस्त हैं। which God says give one Sunday for the Lord. अब परमेश्वर कहता है कि रविवार का दिन तुम प्रभु को दो। Some are not able to come for practices on Saturday night कुछ लोग शनिवार की शाम को यहाँ पर प्रैक्टिस को आ नहीं सकते हैं because you have other priorities to do in your life. क्योंकि दूसरी प्राथमिकताएं हैं आपके जीवन में। How can God appreciate your Christian life? कैसे आपके क्रिस्ती जीवन को प्रभु सराहेगा? If you are not faithful with little, God is not going to give you more. अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु आपको ज्यादा नहीं देगा। This is a man called Jan Cohn, तो ये इस व्यक्ति का नाम है जैन कॉम a co-founder of WhatsApp. और इन्होंने व्हाट्सएप की शुरुआत की। Cohn was born into poverty. Say every say poverty. वो ये व्यक्ति बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ In a था। small village outside Wien, Kiev, whatever you call it, Ukraine, in the country called Ukraine. छोटे से गांव में वो पैदा हुआ था। And his family often lacked hot water. They didn't even have hot. I think it's a cold place that they were struggling to boil water. Hot water के लिए भी वो तड़प रहा था. तो ठंडी जगह थी और वहाँ पे उनके पास गर्म पानी भी नहीं हुआ करता था। He immigrated to US, that is USA, at the age of 16, तो 16 साल में वो यूएस चला गया where he supported his mother by sweeping floors at a grocery store and relying on food stamps. तो वहाँ पे उन्होंने अपने माँ को मदद करने के लिए वहाँ पे साफ सफाई का काम किया ग्रोसरी स्टोर में। He taught himself computer, networking, and eventually sold WhatsApp to Facebook for nearly 19 billion. तो उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग वहाँ पे सीखी और फिर उसने सोल्ड व्हाट्सएप इन द सेंस उन्होंने WhatsApp कंपनी Facebook को बेच डाला इतने पैसों में 19 बिलियन। आप इंडियन रुपीस कन्वर्ट करेगा तो बहुत उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी जो हम लोग WhatsApp चला रहा है वो Facebook से कनेक्टेड है। सो I want to tell you, I want to encourage you, start a small beginning in your life. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग छोटे से शुरुआत करो। Believe in God that God is going to raise you up. परमेश्वर में विश्वास रखो कि परमेश्वर आपको उठाएगा। Be humble. नम्र बनो। How many of you know this guy? इस व्यक्ति को कितने लोग जानते हैं? This guy, if you read his story, he at the age of 65, he was God gave him a break. 65 साल की उम्र में परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। It says in his name is Colonel Sanders. उनका नाम कोलोनल है। And Harland Sanders, the founder of KFC, we eat the chicken fries, right? KFC का जो चिकन वगैरह हम खाते हैं तो उसकी शुरुआत इन्होंने की थी। Faced a life full of rejection and job failures. How many of you have failures in your life
that whatever you go to do, that it's getting failed. उनके जीवन में बहुत सारे ठुकराए जाना और असफलताओं का उन्होंने सामना किया था। How many of you have gone through failures in life? कितने लोगों ने असफलता से गुजरे हैं अपने जीवन में? Have you seen failures in your life? Have you seen failures in your life? Have you seen failures in your life? I have seen failures in my life. Everybody goes to failures in our life, but we don't look back, but we look forward, and we want to achieve something in life. हर God- एक व्यक्ति असफलता से गुजरता है, लेकिन हम पीछे नहीं देखना चाहते, हम आगे देख के कुछ हासिल करना God चाहते wants to do something new in your life in 2026, but the key point is, are you ready to be humble? हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करना चाहता है 2026 में, The key point is, are you ready to be humble? लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप नम्र होने के लिए Are तैयार you ready to serve God in the church without grumbling? क्या आप परमेश्वर की सेवा बिना कुड़कुड़ाए कलीसिया में करने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to say, Pastor, I've been coming to this church, I've been blessed. Can I help you in any other way? क्या आप अपने पासवान से कह सकते हो कि इस कलीसिया में आके मैं आशीषित हुआ हूँ, तो क्या मैं सेवकाई में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? Even if you have been singing on stage, apart from this, are you ready to ask me what else I can do? हालांकि आप अगर आराधना भी करते भी हो, तो भी इसके अलावा और मैं क्या मदद कर सकता हूँ, क्या आप ऐसा पूछने के लिए तैयार हैं? Or only I am coming early, or when I am worshipping, other days I will come late. सिर्फ जिस दिन मुझे आराधना करनी है उसी दिन मैं जल्दी आऊंगा और बाकी दिन मैं पूरा देरी से आऊंगा। If your job was to worship, you will come at 10 o'clock or you will come at 8 o'clock? अगर आपका काम है आराधना करने का, तो आप लोग 8 बजे आओगे कि 10 बजे आओगे? 8 बजे। Then why not, when we are not worshipping also, we don't come at 8:30? जब हम आराधना नहीं कर रहे हैं तो उस दिन भी क्यों नहीं हम जल्दी आते हैं? Question this question in yourself and say, are you faithful with little or you are not faithful with little? क्या आप थोड़े में विश्वास योग्य हो या नहीं, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछें। See, I am here only to tell you whether you like it or don't like it. I don't care. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपको ये बातें बताने के लिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। Whether you come coming Sunday or don't come coming Sunday, I have no problem. आने वाले रविवार को ये सब बातें सुन के आप आओ या ना आओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Hey guys, whom are you fooling around? आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? Are you fooling yourself or fooling God? क्या आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो या परमेश्वर को बेवकूफ बना रहे हो? He persistence led, his persistence, meaning उन्होंने कोशिश किया, led him to franchise his secret recipe, and he eventually sold the company for 2 million, growing into the global fast food brand. यानी कि उसने अपना रेसिपी को बेच डाला, मगर उसने कोशिश किया। Are you ready to? एक टैलेंट भी आपको दिया गया है परमेश्वर ने, आपको 3 कॉर्ड बजाने आता है, आप रेडी है सैटरडे को आप वर्शिप प्रैक्टिस करने के लिए? अगर आपको एक भी प्रतिभा दी है परमेश्वर ने, अगर आपको 3 कॉर्ड भी बजाने आता है, तो क्या आप तैयार हो शनिवार को आकर यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए? और आप ओनली आर कमिंग फॉर अ चर्च एंड गोइंग, मुझे कोई पढ़ी लेना देना नहीं है, ये मेरा चर्च नहीं है, मैं एक धर्म पाल रहा हूं इधर। क्या आप सिर्फ कलीसिया में आना जाना कर रहे हो सिर्फ, और बाकी कुछ भी आपको पढ़ा नहीं है? हेलो, एम आई टॉकिंग टू द चेयर्स? क्या मैं कुर्सियों से बात कर रहा हूँ? एम आई टॉकिंग टू द वॉल्स? क्या मैं दीवारों से बात कर रहा एम आई टॉकिंग टू माई फ्रेम्स? क्या मैं यहाँ पर जो फ्रेम्स लगे हैं उनसे बात कर रहा हूँ? और एम आई टॉकिंग टू यू? क्या मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ? आर यू फेथफुल विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ Are you going to be विश्वास humble with God? क्या आप परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो? Take a decision today. आप आज निर्णय लो। Hallelujah. J.K. Rowling says, रोलिंग नाम का एक व्यक्ति है, before becoming a literary giant, Rowling was a single mother living on welfare in Scotland. एक औरत थी, वो स्कॉटलैंड में रहती थी, struggling with डिप्रेशन में थी। यार कितने लोग डिप्रेशन में है इधर? एवरीबॉडी सेज मैं डिप्रेशन में हूं। कोई छोटा प्रॉब्लम है डिप्रेशन में, वो भी डिप्रेशन में थी बेचारी। शी रोट द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक in coffee shops and faced 12 rejection from the publishers before
Bloomsbury, he finally accepted the manuscript, and the Harry Potter franchise is now a global phenomenon worth billions. उनको भी रिजेक्शन आया. आप लोगों को रिजेक्शन आया है तो आप पीछे मत हटो. किससे रिजेक्शन है आपको? लोगों से रिजेक्शन है. कोई विश नहीं कर रहा है आपको कलीसिया में. मेरे को कोई देख ही नहीं रहा है मेरे तरफ. रिजेक्शन है आपको. पीपल आर कंप्लेनिंग, मैं चर्च में जाके क्या फायदे, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई विश नहीं कर रहा है. मैं कहता हूं आप जाके किसी को विश कर रहा है क्या? मगर आप रिजेक्शन लेके बैठा है. कैसा आपको परमेश्वर उठाएगा? अगर इस साल आपको कुछ करना है, आई वॉन्ट टू टेल यू, डोंट मेट ओनली द whom you like. Go to those whom you don't like. सिर्फ जो अपने को अच्छे लगते हैं, अपने पसंदीदा लोगों से ही Go to those who are hating you. उन लोगों से मिलो जो आपको पसंद नहीं करते हैं या जो जिनको आप पसंद नहीं क्या करते. फायदा है आराधना करके अगर मैं एक दूसरे को बख्श नहीं पाता हूं तो? अगर आराधना करने के बाद अगर हम किसी को माफ नहीं कर ये पाते रियलिटी है, तो ये लाइफ का रियलिटी इधर भी चल रहा है सब ये कुछ. वास्तविकता है जो हमारे हम कलीसिया सुबह में उठ भी के होता है. 6 बजे प्रार्थना करता है, मगर कोई वो बंदा अगर प्रार्थना लीड करता है तो मैं नहीं आता हूं वो प्रार्थना में. और सुबह उठ के 6 बजे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हमें नापसंद वाला व्यक्ति अगर उस दिन अगुवाई कर रहा है तो कैसा हम वो प्रार्थना नहीं मेरा करते. काबूल होएगा परमेश्वर के? तो परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थना को अरे आई एम रेडी टू फॉरगिव और नॉट. हम क्षमा करने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, मेरे को उसका प्रार्थना पसंद नहीं है. किसी की प्रार्थना को हम नापसंद करते हैं. हालेलुया. वेयर आर वी? कहां जा रहे हैं हम लोग? आर वी गोइंग टू हैव अ ग्रेट हार्वेस्ट? क्या ऐसा करके हम लोग अच्छी कटनी काट पाएंगे? और वही लोग जो हमेशा दिखाए, हमको तो और चाहिए लोग, ताकि वो लोग इधर भरपूर ही हो. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखना चाहते हैं. भरपूरी चाहिए तो seek first the kingdom of God. और अगर हमको भरपूरी चाहिए तो हमें पहले परमेश्वर के राज की खोज हमारा करनी सोच बदल देंगे हम लोग. let's सोच बदल देगा. हॉवर्ड, ये नाम भी बहुत कटिंगे. क्या नाम है? स्लूज क्या बोलेगा उसको? हाँ, स्लज. द मैन हु बिल्ट स्टारबक्स कॉफी जानते हैं आप लोग? ये सारी स्टोरी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ताकि ये लोग छोटा से, उनका लाइफ बहुत बिगड़ा हुआ था. आपसे बड़ आप अकेला नहीं है लाइफ बिगड़ा हुआ, उन लोग भी था. वो लोग अगर परमेश्वर ने उनको उठाया तो आपको भी उठाएगा. मगर बी हम्बल. उसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा. Let's read. Starbucks into a global coffee giant grew up in a Brooklyn housing project in a financially troubled family. ये तो बड़ा प्रॉब्लम था उसके लाइफ में, फाइनेंशियली, जैसा आप लोगों का है, किसी लोगों का है. ओके, डोंट गिव अप. ये मैं क्यों बता रहा हूं? आप लोग गिव अप मत हो जाओ. किसी के पास घर नहीं है, कोई भाड़े पे रह रहा है, डोंट गिव अप. मेहनत करो, आपका खुद का घर होगा. मगर सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वर का राज ढूंढो, सब कुछ तुमको मिलेगा. तुम्हारे घर में कोई पीड़ेमंद सिक है, एवरीबॉडी इज सिक इन योर फैमिली, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू. कम, दो यू आर कमिंग फ्रॉम ओल्ड गोवा, सी दैट यू कम इन टाइम एट 8:30. गॉड इज गोइंग टू रेज यू अप. अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, वो चंगा हो जाएगा. अगर तेरे को डेट पे जाना है तो तू इन टाइम पहुंचेगा, मगर चर्च में आना है तो डिले हो सकता है. Who led the expansion of a steel industry was born in a one-room, what is that? Waverley Cottage in Scotland. Waver's Cottage in Scotland, and grew up in extreme poverty. Extreme poverty, बोले तो जीरो में था वो. जीरो में पैदा हुआ आदमी अगर हार्डवर्क करके, he valued the little beginning, small beginning. छोटा beginning को वैल्यू करो. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Often sleeping, forget the misery, hunger. ये ना कुछ लोग जल्दी सो जाते हैं ताकि उन लोग का बुक उनको याद नहीं दिलाएगा. तो इधर लिखा है, मैं एक्चुअली ये forget the misery of hunger बोलेगा तो, forget the misery of hunger बोलेगा तो वो उसके पास खाना नहीं खाने के लिए, भूखा है वो,
वो बोलता है अभी भूखा रहेगा तो मेरे को खाना याद दिलाएगा, उससे अच्छा क्या करना, सो जाना। भूख महसूस ना हो। हाँ हाँ, उसको फील ही ना हो तो भूख उसको याद दिलाएगा नहीं, उसका पॉवर्टी का, उससे अच्छा बोलता सो जाना चाहिए। ऐसा लोग सोते हैं, इतना पॉवर्टी, इतना 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 गंभीर लोग इसमें गुजरते हैं। ओके, वो कहाँ पहुंचा, हंगर। हिज फैमिली मूव टू यूएस। अच्छा अभी तुम लोग सब जन यूएस मत जाओ, हर आदमी यूएस जा रहा है बोल रहे। मैं बोलता हूँ गोवा के अंदर बहुत दौलत है, तुम लोग यूके जाने का करो, यूके जाना, मगर इधर बहुत दौलत है, इधर इतना दौलत है। मारवाड़ी लोग और हमारे कौन से लोग आके इधर, कितना दिल्ली वाले लोग इतना आते हैं, दौलत को कहां से, देयर इज मनी आउट हियर मैन। मेहनत करेगा, लेट्स बी फेथफुल विद लिटिल। हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे। मेरे को किसी ने बोला था 30 साल पहले, अरे एंड्रू तू बंबई छोड़ के गोवा आ रहा है, बंबई तो मार्केट है, गोवा में कुछ नहीं है। मैंने बोला नहीं, मेरे को गोवा में रहना है। और मैं गोवा में छोटी सी दुकान डाली, रंगेवी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, छोटी सी दुकान, सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा बनेगा करके, बट आई वैल्यूड इट। मैं दिन रात जाके उधर कस्टमर आओ या ना आओ मैं खड़ा रहता था, मेरा टाइम पूरा करता था, 9:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। दोपहर को खाना खाने को नहीं जाता था। आई वैल्यूड माई वॉट आई हैड। सेम चीज चर्च में भी वही कर रहा हूं मैं। आई वैल्यू करता हूं मैं, परमेश्वर ने जो हमको दिया है छोटी सी, उसको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर मेरे को डपाक करके, डपाक बोलेगा तो मालूम है, कोंकणी में हम लोग डपाक बोलते हैं, डपाक बोले तो ऐसा ही करके मेरे को 1000 सीटर नहीं देगा। 1000, मैंने जानबूझ के सीटर बोला ताकि आप लोग को थोड़ा हाथ, क्यों सब जान ऐसा करके देख रहा है मेरे, 1000 सीटर नहीं देगा मुझे एक झटके में। जब मेरे को संभालने को नहीं होएगा, मेरे को 50 सीटर संभालने को नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है ये संभालने के लिए। अब ये बंदा दे इधर नहीं है, क्यों नहीं है मुझे मालूम नहीं। यू आर सपोज टू बी हियर। हाउ टू हैंडल पीपल आई डोंट नो, मेरे से नहीं हो रहा है। आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। अगर आप मुझसे परफेक्शन मांगेगा, प्लीज मत मांगो मेरे से परफेक्शन, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, और कोई भी क्वालिफाइड नहीं हो सकता है, ओनली परमेश्वर क्वालिफाइड हो सकता है। अगर आप मेरे तरफ देख रहे हो तो आप गलत जगह पे हो। अगर आप मेरे तरफ देख रहे हो तो आप गलत जगह पे हो। आपको कोई भी कलेशा में आपको क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन वो नहीं पीएचडी वाला, वो देखो सर्टिफिकेट, वो नाम के वास्ते रखा है। ये सारे सर्टिफिकेट का फोटो निकालो, ये तुम लोग को उल्लू बनाने के लिए मैंने रखा है उधर, ताकि जो लोग जो है, जो सर्टिफिकेट को पूछता है, उन लोगों के लिए रखा है। मगर परमेश्वर सर्टिफिकेट के लिए नहीं पूछता है। मैं सर्टिफिकेट मेरे को मजबूरन से करना पड़ा, कोर्स करा के, मगर मेरे को पवित्र आत्मा ही काफी है मेरे लिए। पवित्र आत्मा के अलावा और ये सर्टिफिकेट वो सब उल्लू है तुम लोगों के लिए जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे मेरा पास्टर ना, उसका सर्टिफिकेट लटका हुआ है, मेरा पास्टर ऐसा है। किसने मेरे को बोला तू ना वर्शिप का जैसा खत्म होता है ना, लास्ट गाने पे एंट्री मारो। अरे बाप रे, तो ये मेरे को स्टार बनाने के पीछे पड़ा है। एक व्यक्ति बोला, एंड्रू, पास्टर एंड्रू, एक काम करो, आप ना किधर और जगह पे रहो। वो लोग ये सब दुनिया में देख रहा है, बाकी के पास्टर लोग कर रहा है। मेरे पास और रूम है, उधर ऑफिस है, मैं जाके बैठ सकता हूं। मगर आई एंजॉय द वर्शिप, मुझे वर्शिप एंजॉय करने, मैं वर्शिप इतना एंजॉय कर रहा हूं, ऐसा ऐसा करके नाच रहा हूं मैं। भले तुम लोग कुछ भी बोलो, मेरे बीवी को लायक हो या मत हो, I care a damn. I'm dancing for God. मेरा स्टेप अच्छा हो अच्छा ना हो। किसी ने बोला पास्टर को तुमको नाचने नहीं आता है, हाँ मुझे नाचने नहीं आता है, मगर I'm dancing for God. Be faithful with what you have. Hallelujah. शर्माओ मत परमेश्वर के लिए। तेरा आवाज में, किसी ने बोला तेरा आवाज तो कौवे जैसा गाता है, हाँ मैं कौवे जैसा गाता हूं। I sing like a crow, but God loves me. मेरा दिल को जानता है परमेश्वर। हालेलुया। You may sing like a nightingale, but the question is, am I trying to be humble or not? Oh my God, this is going to too much. ये तो बहुत भारी पड़ने वाला है मुझे। मेरे को लगता है अगले संडे को कोई नहीं आएगा चर्च। His family moved to US and started working as a bobbin boy. Bobbin नहीं, बॉबिन को लपटाने का धागा, बॉबिन होता है ना, बॉबिन मशीन में डालता है, वो बॉबिन लपटाने का, वो बॉबिन बॉय इन अ कॉटन मिल एट एज ऑफ 13 साल का उम्र का वो बॉबिन लपटा रहा था। मैं मेरे बाप के पास काम किया मुंबई में,
जब मैंने डैडी को बोला, डैडी कोई लड़का मत रखो पगार पे, क्योंकि मैं काम करूंगा, मैं शर्ट लेके लपटा के 10-12 शर्ट लेके मैं काज मारने के लिए जाता था, 1.5 माइल 1.5 माइल वॉकिंग, बट आई एंजॉयड, मैं रिजॉइस कर रहा था, मैंने कंप्लेन नहीं किया, मैंने करा नहीं किया, आई एंजॉयड, गॉड ब्लेस्ड मी थ्रू हार्ड वर्क, सेल्फ एजुकेशन, उसने सेल्फ एजुकेशन किया एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट किया, ही बिल्ड द Carnegie Steel, what that? Carnegie Steel Company. Carnegie. Thank you for correcting me. Becoming one of the wealthiest man in the history and a major donor. पैसा किसको जमा करके रखने का है? बीवी, ग्रैंड डॉटर को उनका शादियों के लिए मत जमा करके रखो पैसा। ग्रैंड डॉटर लोग अपना कमा के खाएगा, जैसा मैंने कमाया, जैसा तुमने खाया। पैसा जमा करके ग्रैंड डॉटर को मत डालो, उल्टा सो द सीड इन द किंगडम ऑफ गॉड। अरे यार तुम लोग क्या समझाऊं, तुमने मेहनत नहीं किया क्या? तो फिर हम दूसरों ग्रैंड डॉटर के लिए तुमने क्यों पैसा जमा करके रखा है? क्यों जमा करके रखा है? लाओ, चलो एंड्रू बोलो, चलो एक बड़ा आउटरीच करेंगे, कोई बड़ा लीडर को लेके आएंगे, अंकित सजवान को लेके आएंगे, कितना लाख रुपया का खर्चा होगा? देख किसी ने वो बोल दिया। पैसा डालो, पैसा डालो, कम से कम 10 लाख या 50 लाख, पता नहीं 1 करोड़ भी लगता है तो बड़ा ऑडिटोरियम बुक करना पड़ेगा। है ही पैसा आपके पास, मगर आप लोग देता नहीं है। आप लोग ने ग्रैंड चिल्ड्रन को रखा है सर्टिफिकेट बना के, और ग्रैंड चिल्ड्रन को आप लोग लेजी बनाएगा, वो लोग काम नहीं करेगा। ग्रैंड मदर ने मेरे पे नाम पे पैसा रखा है, वो काम नहीं करेगा। कभी कभी मेरे को दुख होता है, मैंने कमा के क्यों, मेरे 2 बच्चे लोग बहुत स्मार्ट है, वो भी बड़ी वाला भी स्मार्ट है। कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा मैं जो बोलता हूं, मगर घुमा फिरा के ये बोलना चाहता हूं, लेट्स वैल्यू द स्मॉल बिगिनिंग, लेट्स वैल्यू द स्मॉल बिगिनिंग। आमेन, हालेलुया। क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है। धीरूभाई अंबानी, आप लोग इसके बारे में जानता है, वो क्या था, गैस, वो हमारा गैस भर रहा था, किधर? पेट्रोल पंप पे। मेहनती था, ही वैल्यूड द स्मॉल बिगिनिंग। स्मॉल बिगिनिंग को वैल्यू करो। अरे यार परमेश्वर ने मेरे को एक ही टैलेंट दिया है, वो लेके क्या करे? नहीं, मेरा एक छोटा दुकान हो गया, बाद में बड़ा दुकान किया, बाद में बड़ा दुकान किया, बाद में 3 दुकान किया, 4-5 दुकान हो गया था, पेंडिंग में 2 दुकानें बंद किया। काहे के लिए? परमेश्वर ने वैल्यूड द स्मॉल बिगिनिंग, छोटा सा बिगिनिंग। ओके, छोटा बिगिनिंग को वैल्यू करो। आजकल का जवान बच्चे लोग इधर बैठा है, आप लोग याद करेगा कि स्मॉल बिगिनिंग को वैल्यू करो आज, और आज से आने के बाद आप लोग बड़े इंसान बनेगा। ओके, डेविड ग्रीन, हॉबी लॉबी का नाम है उसका। His wife Barbara started Hobby Lobby as a small home-based picture farming business in in the early 1970s, and it was since grown, please आप लोग भी पढ़ो मेरे साथ, into a nationwide art and craft retail giant. Green attributes his success to God and operates the company on biblical principles. हाँ, ये याद रखो। अब ये 3 व्यक्ति जो है, जो बिलीवर लोगों के बारे में बात हो रहा है, प्लीज जरा समझा सुनो। अब ये जो बाकी का जो व्यक्तियों का पढ़ा मैंने, वो सब वर्ल्डली थे, मगर कुछ लोग यीशु को जानते थे, मगर ऐसा। ओके, अभी जो मैं 3 लोगों का प्लीज ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं प्लीज, क्या बोला उसने? बिब्लिकल प्रिंसिपल्स इंक्लूडिंग कीपिंग स्टोर्स क्लोज ऑन, द ग्रीन फैमिली इज ऑल्सो नोन फॉर सिग्निफिकेंट चैरिटेबल ट्रस्ट खोला उसने, डोनेटिंग टू वेरियस क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री। यानी कि उसने कमा के क्या किया? क्या किया उसने? परमेश्वर के राज में डाल दिया पैसा। किधर डाल दिया? अच्छा, आज अभी ये मैं एक बात बताऊं, अभी हमारा वो जो बाइबल पाथवे, जिसके पास 300 रुपया देने को पैसा नहीं, जिसके पास 200 रुपया देने को है नहीं, जिसके पास 100 रुपया देने को है नहीं, वो फुकट में आना चाहता, आ जाओ। मगर जिसके पास देने को है, वो 300 रुपया मत दो, वो 1000 रुपया दो। जिसके पास वो 300 रुपया मत दो, वो 5000 रुपया दो। पास्टर ये ले, हम ज्यादा दे रहे हैं, मगर सारी कलिशा आना चाहिए। वो बाइबल पाथवे काहे के लिए हो रहा है?
भरपूरी आ रहा है हमारे कलीसिया में। कौन सी भरपूरी आ रहा है? कंसु किसकी भरपूरी आ रहा है? सिस्टर, कौन सी भरपूरी? हार्वेस्ट का। आपका टैलेंट इस्तेमाल होना चाहिए, कैमरा का। शी इज अ फोटोग्राफर। हु इज फोटोग्राफर? डैड वाज अ फोटोग्राफर, बट यू नो अबाउट फोटोग्राफी। जानती हो कैसा फोटो लेना है। हमको आज फोटोग्राफर चाहिए। कंट्री आप लोग मतलब शो योर टैलेंट। एक दो फोटो खराब आ गया, नो प्रॉब्लम, मान लेगा, पर अगले संडे को और अच्छा आएगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आप लोगों का टैलेंट डाल दो परमेश्वर की इसमें। द फाउंडर ऑफ मेजर फास्ट फूड चैन चिक पिले, ये अमेरिका में एक नया रेस्टोरेंट खुला है फास्ट फूड उनका। देखो, हाँ, वो क्रिश्चियन है। कैन वी read through it Kathy built his business on hard work and biblical principle। यानी कि हार्ड वर्क भी किया और क्या किया? बिब्लिकल प्रिंसिपल। प्लीज बी वन थिंग। मेरे को किसी ने बोला, मेरे काउंटर पे बाइबल पढ़ा था, और एक व्यक्ति ने आके बोला, एंड्रू बाइबल और तेरे काउंटर पे। मतलब क्या हो गया? अरे यार, बाइबल और बिजनेस मिक्स नहीं कर सकता। मतलब क्यों? बोला बाइबल बोलता है झूठ मत बोलो, बिजनेस बोलता है झूठ बोलो। मैंने बोला, मैं झूठ बोलने का बंद कर दिया। एंड आई एम प्राउडली टू बी अ क्रिश्चियन। मेरे दुकान पे आके आ जाओ, वी आर प्लेइंग अ गॉस्पेल म्यूजिक। कपड़ा सिलाने के मत आ जाओ, खाली देखने को आ जाओ। वी आर हैविंग ट्रैक्स इन द बाइबल इन द शॉप। हमने बाइबल रखा है इधर। प्राउडली आई एम कॉलिंग माई सेल्फ, आई एम अ बिलीवर। यू शुड कॉल योर सेल्फ, यू आर अ बिलीवर। डोंट बी कावर्ड। डरपोक मत बनो। अरे एक दिन तो मरना ही है ना, उससे अच्छा यीशु में मरो। He started with a small restaurant, छोटा रेस्टोरेंट, called the Drop Grill in Happily, जॉर्जिया करके एक जगह है यूएसए में, which later became the first chicken fillet. He was committed to keeping all locations closed on Sunday to allow the employees for time for rest and worship God. समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझा कुछ लोग? उन्होंने सारे स्टोर्स अपना संडे को बंद रखा। मेरे पास एम्प्लॉयज आके पूछता है संडे बंद है? मतलब संडे बंद है भाई, संडे हम आपको काम पे नहीं बुलाएंगे, संडे बंद है। ऐसा नौकरी ढूंढो जो तुमको संडे वर्शिप को आने को मिलता है। अगर तू एंटरप्रेन्योर है, तू ये है, कोशिश करो कैसा भी करके संडे को हम दुकान बंद रखना चाहिए। Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. सब जन आ जाओ। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. परमेश्वर का वचन कहता है आपको प्लान रखा है, बड़ा प्लान रखा है। Amen, amen, hallelujah.